इस विचाले किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सांसदा ने पीएम बोरिस जॉनसन ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 100 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ सांसदा ਨੇ बोरिस जॉनसन ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। पीएम मोदी नाल गल कर यह मसला चुकिया जाए। इन्होंने ब्रिटिश सांसदा ने मंग की। तो दस दी कि इस तो पहला ब्रिटिश सांसदा ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नाल किसानों के समर्थन च अपना 26 जनवरी का भारत दौरा रद्द करने की भी मंग की सी। जॉनसन ने दौरा तो रद्द कर दिता, पर इस दे पिछे किसानों नूं नहीं ब्रिटेन कोरोना नाल विगड़ते हालात नूं वजह दस्सिया सी। दस दी कि 26 जनवरी की परेड इस साल बोरिस जॉनसन भारत के मुख्य मेहमान सन, लेकिन उन्हों का दौरा रद्द हो चुके हैं। इस विचाले किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटेन में भी सियासत तेज हो चुकी है। तकरीबन 100 सांसदा ने पीएम बोरिस जॉनसन को चिट्ठी लिखी है तो मंग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसानों का मसला चुकिया जाए। इंडिया के विच किसान संघर्ष किसान अंदोलन चल रहा है, उसनूं लैके दुनिया भर दे विच लोग फिक्रमंद ने। किसानां नूं मेरा यह पैगाम यह सुनेहा है कि बहुत सारे लोग मेरे वर्गे जिन्हां दा अपना पिछोकड़ एक पेंडू खेतीबाड़ी परिवार दे नाल संबंध ताल्लुक रखता है, असीं तुहाडीआं चिंतावां नूं भली भांत उस तो जाणू आ वाकफ आ। तदी मैनूं यह बेहद खुशी हो रही है तुहानूं दस्सण दे विच कि 100 तो वध यूके दे MPs ने एक चिट्ठी ते दस्तखत कीता है, जो कि यूके दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं पेश कीती जावेगी। ਧੰਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਪੰਛੀ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 35 ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਅੰਡੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਤੋਤੇ ਮਿਲੇ। 35 ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤ ਪੰਛੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 35 ਮ੍ਰਿਤ ਤੋਤੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਅੰਡੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਿਕਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੋਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4-5 ਵਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ? 20-25 ਪੰਛੀ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ 25-30 ਮਰੇ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। एहतियात बरती जा रही किस तरीके का? पर कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम भी लग रहा है जी, कोई फ्लू वाला सिम्पटम नहीं लग रहा है भी कोई पॉइजनिंग के चांस बढ़ता है।
ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਡਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। 35 ਤੋਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 35 ਤੋਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 5 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 5 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मनोज कुमार ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके ने। मनोज, जानना चाहांगे कि कुछ खबर इस पूरे मसले नूं लैके की कुछ अगे एहतियातन कदम चुके जा रहे हैं। 1.5 ਲੱਖ दस्या जा रहा है मुर्गियां नूं मारन दे हुकम सरकार वालों जारी किए गए हैं कि आले दुआले दे होर इलाकियां विच भी बर्ड फ्लू फैलण दा खतरा है। देखिए, पंचकुला जिला का ये रायपुर रानी ब्लॉक है और इसी ब्लॉक में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 2 पोल्ट्री फार्म्स में जो बर्ड फ्लू के लक्षण हैं मुर्गियों में वो पाए गए हैं, उसकी पुष्टि हरियाणा सरकार ने कर दी। उसके बाद यहाँ जहाँ पर वो पोल्ट्री फार्म है और जहाँ पर हम मौजूद हैं इसको इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। 1 किलोमीटर के दायरे को और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित करते हुए हरियाणा सरकार ने यहाँ पर किसी भी प्रकार से चिकन या अंडों की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। और इसके साथ साथ 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 5 पोल्ट्री फार्म हैं। यहाँ करीब 1,66,000 मुर्गियां हैं, इनको भी मारने का जो फैसला है हरियाणा सरकार ने किया है। इसके एवज में मुआवजा भी सरकार मुर्गी पालकों को 90 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से देने जा रही है। और जो वर्कर हैं जो पोल्ट्री फार्म्स में काम करते थे उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। और आज से ही जो मुर्गियों को मारने का काम था, जो कार्रवाई थी वो होनी थी, लेकिन अभी ग्राउंड पर स्थिति बिल्कुल इन दावों से उलट है। हम सुबह से यहाँ पर हैं लेकिन अभी तक हमें स्वास्थ्य विभाग या पशुपालन विभाग की तरफ से
कोई एक्शन ग्राउंड पर नजर नहीं आया है। और यहाँ पर एक बड़ी भयावह तस्वीर भी देखने को मिली है। इस वक्त हम खंगेसरा गांव के पास हैं। यहाँ सड़क के किनारे बहुत सारी मृत मुर्गियां पाई गई थी। कल दोपहर से ग्रामीण बता रहे हैं कि ये मुर्गियां यहाँ पर थी और लगातार प्रशासन से उन्होंने संपर्क भी किया, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं आया। प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर जेसीबी क्रेन मंगवाकर इन मृत मुर्गियों को यहाँ पर दबाया है और तमाम एहतियात की बात जरूर की जा रही थी। कुछ स्थानीय लोग यहाँ हैं। या आप यहीं के रहने वाले हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मुर्गियां बहुत सारी थी, पता लगा कैसे यहाँ पर आई, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਆਈ ਆ था ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ क्या था ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ आया कोई अधिकारी? नहीं ये कोई नहीं आई तो अपने आप करा आप लोगों ने? कैसे कराई? है जी ये जो दवाया किसने दवाया? फिर अपने आप किया आप लोगों ने? आप ही कराई पिंड वाला ने जी गांव वालों ने किया। देखिए और मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी जो बड़ी संख्या में जो मृत मुर्गियां हैं यहाँ सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं, जबकि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और उसके बावजूद यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखिए सड़क के किनारे किस तरीके से जो मृत मुर्गियां हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सामने आप देख सकते हैं ऐसे ही बड़ी तादाद में जो मुर्गियां थी यहाँ सड़क के किनारे पाई गई थी, जबकि जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरी बायो हजार्ड किट पहनने के बाद जो कर्मचारी हैं वो उनको दफनाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे खुले में ये मृत मुर्गियां पड़ी हैं जबकि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। उससे आसपास के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये हालात तब हैं जब बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुकी है, सर्विलांस जोन घोषित हो चुका है, इन्फेक्टेड जोन घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल मनोज, ये बड़ी लापरवाही है, लोगों की जान के साथ भी ये खिलवाड़ है सरासर, क्योंकि अगर इस तरह से मृत मुर्गियां वहां पड़ी हुई हैं, ख्याल नहीं रखा जा रहा, होना तो ये चाहिए था कि पूरा इलाका सैनिटाइज किया जाता एहतियातन। जी बिल्कुल। देखिए जब आप संभावना नहीं जता रहे हैं कि हो सकता है बर्ड फ्लू हो, ये कंफर्म हो चुका है, सरकार इसकी पुष्टि कर चुकी है और बाकायदा इसको इन्फेक्टेड जोन घोषित किया हुआ है। सरकार ने तो ये भी कहा था पशुपालन मंत्री ने कि बाकायदा चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे 1 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में, और किसी प्रकार से चिकन का जो आना जाना है यहाँ से सप्लाई है वो पूरी तरीके से रोकी जाएगी। लेकिन ऐसा ग्राउंड पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब मिल नहीं रहा है। और लापरवाही ये है कि बहुत बड़ी संख्या में दरअसल यहाँ पे मुर्गियां मर रही हैं पोल्ट्री फार्म्स में और उनको दबाने का, उनको डिस्पोज ऑफ करने की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ गई है। इसीलिए शायद पोल्ट्री फार्म चोरी चुपके से यहाँ पर ये मुर्गियां डाल के यहाँ से जा रहे हैं और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर जब हम सुबह पहुंचे थे यहाँ इकट्ठा थे, उन्होंने अपने स्तर पर जो जेसीबी क्रेन है उसको मंगवाया और फिर उसके बाद इन मुर्गियों को दबाया गया। और ऐसे ही इस सड़क के किनारे जो ये झाड़ियां हैं इनमें बहुत सारी मुर्गियां हैं जो यहाँ से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। इस सड़क के किनारे जो एक खाई है उसके अंदर बहुत सारी मुर्गियां पड़ी हैं और इस तरीके से एक मरी हुई मुर्गियों का एक ढेर बाकायदा यहाँ पर था, जिसको ग्रामीणों ने फिलहाल तो दबवा दिया है, लेकिन अभी भी खुले में बहुत सारी मुर्गियों की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। और बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद ये जो वायरस है ये हवा में भी जा सकता है, हवा में भी तैरकर लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये खतरा यहाँ पर पैदा हो गया है। और अभी फिलहाल गनीमत यह है कि रायपुर, रानी और पंचकुला के इसी हिस्से में ये बर्ड फ्लू है और किसी इंसान में ये अभी तक ये नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर इंसानों में जाने लगा, किसी वर्कर में हो गया, उसके माध्यम से इंसानों तक ये पहुंच गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल बड़ी चुनौती है इस वक्त स्थानीय प्रशासन के सामने भी। शुक्रिया मनोज। सीधिया तस्वीरां तुसीं वेखियां, बरवाला तो सीधिया तस्वीरां सन जिथे बर्ड फ्लू के चलते एक पासे हरियाणा सरकार ने 1.5 लाख तो वध मुर्गियां मारन का ऐलान किया है, मारन के हुक्म जारी किए ने 5 पोल्ट्री फार्म्स से होर 4.5 लाख तो वध मुर्गियां मर चुकियां ने। बर्ड फ्लू की तस्दीक भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वड्डी लापरवाही सामने आ रही है। बरवाला का वो इलाका तो तुहानूं दिखा रही सी जिथे मुर्गियां जड़ियां ने खुले विच मृत पाईयां गईयां ने, कोई इंतजाम नहीं किए गए, इन्हां नूं दफनाण ते हो रही मन्निया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म्स जिन्हां दे ने वो इत्थे लिया के मुर्गियां नूं सुट रहे ने।
ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਾਰੀ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2003 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हमें प्रेरित कर रहा था उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है साथियों मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है चाहे मंदिर हो चाहे हमारे गुरुद्वारे हो चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है कितना गर्व होता है और आप अंदाज लगा सकते हैं जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था गौरव होता था आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं साथियों भारत के महान संत और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा और ये हम गर्व से कहना चाहिए दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा है के डरियाक केट इड्डुतम वंड्रगुंडा नांडेनप नाटिन तलई इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती साथियों आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है शांति का समय हो या संकट का हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला
साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। भाइयों और बहनों, हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बटाव हुआ है। वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। साथियों, जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पढ़ा लिखा भारत, ये भारत तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब, अशिक्षित है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉर्न्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं। फ्रेंड्स, पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट, उन देशों में भारत एक है।
आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है, वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। हमारे यहां कहा गया है, शतहस्त समाह सहस्त्रहस्त समकिर, यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था, इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है, उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। साथियों, आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए, भारत को, भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे, आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे हैं। और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है, तो मैगजीन्स, कुकबुक्स या मैनुअल से ज्यादा आप सभी के जीवन के कारण, आप सभी के आचरण के कारण, आप सभी के व्यवहार के कारण ये सब संभव हुआ है। भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है, न थोपने की कोशिश की है, न कभी थोपने का सोचा है, बल्कि दुनिया में आप सभी ने भारत के लिए एक जिज्ञासा पैदा की, एक इंटरेस्ट पैदा किया है। भले वो कौतुक से शुरू हुआ हो, लेकिन वो कन्विक्शन तक पहुंचा है। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए देखेंगे,
तो क्या आपको इस पर गर्व नहीं होगा? टी से लेकर टेक्सटाइल और थेरेपी तक ये कुछ भी हो सकता है। मैं तो आनंद होता है जब आज खादी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन रही है। इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रीच डायवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप दुनिया के गरीब से गरीब तक एफोर्डेबल और क्वालिटी सॉल्यूशन पहुंचाने का जरिया बनेंगे। फ्रेंड्स, भारत में इन्वेस्टमेंट हो या फिर बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान अतुलनीय रहा है। आपकी एक्सपर्टाइज, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके नेटवर्क्स, आपके अनुभव का लाभ हर भारतीय, पूरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए गौरव भी करता है और आपके लाभ के लिए वो हमेशा आतुर भी रहता है। इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं ताकि आपको भी अवसर मिले और यहां की अपेक्षाएं भी पूरी हो। आप में से काफी लोग जानते हैं कि कुछ सप्ताह पहले ही पहली बार वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा गया वैभव का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 70 देशों के 25,000 से ज्यादा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने करीब 750 घंटों तक चर्चा की और इससे 80 सब्जेक्ट्स पर करीब 100 रिपोर्ट्स निकली।